Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 12th SPCC chapter number 1, Banking Correspondence. So as you all know, we are starting up with a new subject. So now let us move on with the subjects portion, that how the subject is covered up. If you are seeing SPCC means the secretarial practice and correspondence communication, means कोई भी business के अंदर you know that there is a practice of writing letters and everything. That whole portions will be seen up in this subject. Rather than commercial communication is also another, we can say that important aid और अ टूल विच इज यूज टू डेवलप एनी बिजनेस. तो कोई भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें एक अच्छा कम्युनिकेशन होना नेसेसरी है, ये माना जाता है. सो फॉर दैट पर्पज वी आर गोइंग टू सी दिस एज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन अवर 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स. So today we are going to start up with the part 1. There are two parts of this chapter. One is SP and second is CC. In this book there are two parts. Okay, so first part, in that first part we are going to see the first chapter, Banking Correspondence. So students, without wasting the time, now let us move on with the part 1 of the chapter in the further portion from the PDF. So students, as we discussed, let us see the index of the SPCC book of the 12th standard. There are two parts, as I said you. Part 1 is of commercial correspondence and second is of secretarial practice. First is chapter. In first part there are 6 chapters included in that. In the same manner, in the part 2 there are 7 portions that are included in the part 2, secretarial practice. So in the first portion, what are the topics that are bank correspondence? The things that we are doing or related to the bank in any business is considered as bank correspondence. Second is correspondence with the banking department, public service and local organization. Third is interdepartmental and employee related correspondence. Fourth is insurance letters and fifth is e-communication and sixth is presentation skill. So if you are seeing these whole 6 topics, you can be very aware by this thing that the correspondence means to give and take of any information. That is considered as correspondence. So here the commercial correspondence means in business or in any way of doing work. If you are having a professional connectivity of talking and understanding that portion, that is considered as correspondence. So here in 6 way they are teaching you to learn how you have to correspond with bank and government department, public services and local government. In the same manner, what are the internal department or employee related correspondence that you can avail in your jobs. An insurance letter, if you have claimed insurance, if you want to claim an insurance, what are the correspondence of that portion, and what is e-communication and what are the types of presentation skill. That all part are seen up in the part 1. Second is secretarial practice. Secretarial practice means, you know, SP means secret. Secretarial practice means the practice which gives you the form of what the secretarial things are being done up in any business. First one is issue of share. Issue of shares, how the issue of the shares can be done up. Transfer and transportations of shares, how we have to transfer and what is the transmissions of the share and what is debenture. Membership, how you can take a membership on any cooperative society or any business world, that is considered as membership. Director of a company, who are the director of the company, what legal procedure they have to do, what are the identity they have to create and what things they must have, the skills they must have. That all being discussed in this chapter. The meetings of the company, you know that there are many meetings of the companies, but the AGM, which is annual general meeting, is considered as the main meeting, and there are another many statutory laws and meetings that must be carried out by a company. What are they? Dissolution of a company, how a company can get dissolved up. Now you will be thinking of that these topics were being covered up in the accounts also. Yes, as I said, the commerce subjects are always interrelated with each and every subject. If you are seeing the part 2 secretarial practice, it gives you the amongst knowledge of the account. If your account is good, then this subject is very clear to you. That's why I said on the starting of the
portion that this is the easiest subject according to me. Rather than that, apart from being easiest, it is the toughest one, because here you have to gain the knowledge and skill to develop yourself. So this can be a scoring subject for you in the 12th standard. So be aware of this portion and prepare it in a very well manner. So now let us move on with the first chapter of the part 1, which means the banking correspondence. So as usual in this chapter, what you are going to see, the part 1 is of commercial communication, bank correspondence. So in that, what you will learn in this chapter, that 3 indexes given up. First is introduction, as usual in economics and BA also same you are seeing. In 1.2 bank correspondence, in that there are 2 types of classification. One is request letter, which is written to bank, and second is complaint letter. 2 type of correspondence you can take up with the bank. First, you can request them for something, or you can complain for some problems that you are facing on the account or bank. So these 2 types of bank correspondence can be done up, and examples of the bank correspondence. The types of examples are being shown up here. So now let us move on with the detailed explanation of the chapter from line to line from the textbook as we go on for each and every subject. So the introduction, I am going to read it up, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. Bank is an integral part of trade and commerce, economics, dealing and financial management of any nation, from the common man to a big industrialist, from an actor to a politician. Every person takes the service of bank. The functioning of banks reveals the economic condition of any nation. Banks perform 2 main functions: to provide finance and to receive money. Along with various services, banks provide ultra-modern facilities such as online and mobile banking facilities. As a result, banking facilities have become speedier and customer-oriented. The Reserve Bank of India formulates rules for all types of banks, such as nationalized bank, cooperative banks, private bank, industrial bank, and agriculture bank to regulate them. The Reserve Bank of India also instructs all these banks as and when required. Current accounts and savings accounts holders can take the advantages of banking services. सबसे first line, if you are seeing the first line, bank is an integral part of trade and commerce. You know that without bank, the trade and commerce is not possible. The auxiliary services, in that the first topic is bank. तो इकोनॉमिक डीलिंग्स जो भी होता है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट वी आर सीइंग, वट एवर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट वी आर सीइंग फॉर एनी एंटायर नेशन, that the bank is the integral part. Integral part means the important backbone of that portion. From the common man to big industrialist, एक छोटा मोटा common man से लेके बड़ा industrial तक, एक actor, एक politician, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, even not me, not you. No one will be in the world such as who is not having the service of the bank. We can say that in some rural areas the people are not aware, they are not having, but after that Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and the Demonetization Act, now the rural people are also having the service of bank. They are also having an account. तो इस तरीके से हर एक इंसान जो है बैंक के साथ कनेक्टेड माना जाता है. फंक्शनिंग ऑफ बैंक, अगर हम फंक्शनिंग ऑफ बैंक की बात करते, इट रिवेल्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी कंट्री. अगर हमारे कंट्री में हर एक इंसान बैंक को यूज करने लगेगा, यू नो दैट आईटी रिटर्न बैंक पे डिपेंडेंट हो जाता है, बैंक की पासबुक की उधर जरूरत पड़ जाती है. तो उसी तरीके से फॉर ईच एंड एवरी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स द बैंक इज प्लेइंग एन वाइटल रोल. जो फंक्शन है बैंक का, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री या नेशन का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो रिवेल यानी सही रिवेल करने के लिए फंक्शन आउट करता है. बैंक्स को मेजरली 2 मेन फंक्शंस करना पड़ता है. व्हाट यू नो दैट इन अ वेरी वेल मैनर, वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑल टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स एंड बीए. सो व्हाट इज दैट? फर्स्ट इज टू प्रोवाइड फाइनेंस एंड सेकंड इज टू रिसीव मनी. एक तो लोगों से डिपॉजिट्स कलेक्ट करना, फिर उसी डिपॉजिट्स को लोन के रूप में किसी को फाइनेंस के रूप में देना. So here to provide finance and to receive money, both the things are being done as the 2 main part of the banking functions. You still remember in economics chapter number 4 we have discussed the same topics. So as a result banking facility की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ही स्पीडियर होने लगा है. Why? Because पहले के बैंक में और अभी के बैंक्स में बहुत सारे डिफरेंस देखे जाते हैं. What are the major difference? The bank provides ultra modern facilities.
First of all, in the ancient time, if you want to go and deposit the money, you have to stand on a long queue and you have to take your passbook and give it, then you can. But now it is not like that. If you are taking your passbook number, your account number, and if you are having the cash, you can deposit on the green deposit ATM machines that are preferred in the bank. तो यहाँ पे अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज हमें अवेलेबल हो गए. रदर देन दैट, ऑनलाइन, यू आर नोइंग वेरी वेल, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज भी हमें मिल रहा है. और एज अ रिजल्ट बैंकिंग का जो फैसिलिटीज है और स्पीडियर हो गया एंड कस्टमर ओरिएंटेड माना जाता है. If you are talking about Reserve Bank of India, you know that the apex bank, central bank, the main bank of India. तो इसका क्या काम होता है? तो इसका यही काम होता है कि ये जो नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक कौन सा है, इंडस्ट्रियल बैंक कौन सा है और एग्रीकल्चर बैंक क्या है और इनके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे, इनके रूल्स कैसे लगने चाहिए, उनको कैसे फंक्शन करना चाहिए, उनकी सुपरविजन करना, यही सारा काम कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक का माना जाता है. इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज द हेड टॉप लेवल ऑफ द बैंक एंड ऑन दैट पोर्शन द रूल्स एंड फॉर्मुलेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय आरबीआई दैट इज फॉलोड अप बाय द अदर ऑल बैंक. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्ट करना है कैसे दूसरे बैंकों को काम करना है. अब बैंकों के अंदर हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन अकाउंट होल्डर्स. फर्स्ट इज करंट अकाउंट एंड सेकंड इज सेविंग अकाउंट. दो मेन टाइप के अकाउंट्स बैंकिंग सर्विसेज पे देखा जाता है जो एक एडवांटेजेस के रूप में माना जाता है. फर्स्ट इज करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन यूज करता है एंड सेकंड इज सेविंग अकाउंट विच इज यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स दोज हु आर हैविंग और डूइंग द सेविंग्स मोशन. जो मोटिवेट उनका सिर्फ और सिर्फ सेविंग करने का होता है वो सेविंग अकाउंट यूज करते हैं. एंड द करंट अकाउंट इफ यू आर टॉकिंग इट इज used widely for the businessman and there are certain rules and regulations for both the account that we have. We know it very well. If you are not knowing then I am narrating it. Listen it carefully. Current account businessman deal out करता है. इसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं. चार्जेस बैंक कट करता है उसको इतना अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन देने के लिए. दिन में कितने भी डिपॉजिट कर सकता है, कितना भी विड्रॉल कर सकता है. बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिलता है, कैश क्रेडिट का मिलता है, डिमांड ड्राफ्ट का मिलता है. ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज करंट अकाउंट को बिजनेसमैन के रूप को यानी बिजनेसमैन के ग्रुप को कहीं ना कहीं जो बैंक है वो अवेल करवाता है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेविंग अकाउंट इट इज फॉर द इंडिविजुअल जो मिडिल क्लास के होते हैं जिनका सेविंग्स को और मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है. यहाँ पे बैंक एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट देता है जो करंट अकाउंट में नहीं दिया जाता और जो है सेविंग अकाउंट में दिया जाता है. तो करंट अकाउंट पे सेविंग्स का कोई मोटिवेशन नहीं होता, वहाँ पे बिजनेस प्रॉफिट के रिलेटेड चलता है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना और पैसे की सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए सेविंग अकाउंट देखा जाता है और इसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं. Okay, so these are the difference between the current and saving account. Here we are completing up the introduction. Now let us move on with the banking correspondence. What is banking correspondence? I am going to read it out. Listen it out carefully. Any communication with bank should take place in a simple style, precise language and in a prescribed format. Secrecy should be maintained as it dealt with money matter. Precision and punctuality are highly needed in bank's correspondence. In the bank correspondence, the account number and the type of account means savings or current account should be clearly mentioned. Another important thing is that the date must be written in the letter. As and when, why any amount is to be mentioned in the bank correspondence, then it should be written in figures as well in words. Generally, the amount in words is written in the bracket. Normally, communication with bank takes place for the following two reasons. ठीक है, so that we will see afterwards. Now we will discuss about this one paragraph that I have read. Any communication, कोई भी communication अगर हम बैंक के साथ ले करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही सिंपल और easy स्टाइल में होना चाहिए जो easily उनको समझ में आ जाए. लैंग्वेज उसका प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज इन द सेंस क्लियर एंड कट. देयर मस्ट बी नो पन लैंग्वेज, डबल उसकी कोई मीनिंग नहीं निकलनी चाहिए. क्लियर एंड कट लैंग्वेज होना, शॉर्ट एंड स्वीट जो बोला जाता है. जैसे हम कहीं कहीं ऑफिशियल काम से गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग अ चांस टू मीट समवन फ्रॉम ऑफिशियल पोर्शन, उनसे हमें मिलना है तो हमें उनके साथ बहुत ही लिमिटेड बात करना पड़ता है, शॉर्ट एंड स्वीट. एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर हम उनको हर चीज़ समझाना पड़ता है. उसी तरीके से बैंक के अंदर हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका लैंग्वेज बहुत ही प्रिसाइज यानी क्लियर होना चाहिए और प्रिस्क्राइब
प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, लेटर का जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। सीक्रेसी यहाँ पे मेंटेन किया जाता है अगर मनी मैटर पे कोई बात करना हो तो, बैंक के साथ अगर आप मनी मैटर पे कोई टॉपिक डिस्कस करते हो तो उसकी सीक्रेसी वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। प्रिसिशन एंड पंक्चुअलिटी ये सारी हाईली नीडेड होता है बैंकिंग करस्पॉन्डेंस के अंदर। प्रिसिशंस यानी हम जब भी कोई चीज़ करते हैं उसके पहले ही हमारा डिसीजंस के पहले हम क्या सोच लेते हैं, तो प्री डिसाइडेड वन, दैट इज प्रिसिशंस। हमारा प्रिसिशंस और पंक्चुअलिटी हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर कॉमा, मिस्टेक्स एंड दैट स्पेलिंग मिस्टेक्स, दैट पंक्चुएशंस जो होते हैं वो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। पंक्चुअलिटी यानी टाइम टू टाइम वो सारी करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं बैंक करस्पॉन्डेंस में बहुत ही हाईली देखा जाता है। इन द बैंक करस्पॉन्डेंस हमें बैंक करस्पॉन्डेंस में क्या क्या नेसेसरी डिटेल्स डालना है, तो अकाउंट नंबर डालना है, हमारा कैसे टाइप का अकाउंट है, सेविंग है या करंट है, उसको हमें क्लियरली मेंशन करना है। हमारा नाम, हमारा अकाउंट नंबर और हमारा किस टाइप का अकाउंट है ये बताना पड़ता है। फिर हम जो डेट को लेटर लिख रहे हैं उस लेटर को उस डेट के अंदर मेंशन, उस लेटर के अंदर वो डेट मेंशन करना पड़ता है। और फिर हमने क्यों वो लेटर लिखा है, उसके अंदर कितने अमाउंट है उसको हमें मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल हमारा 20,000 का चेक लॉस्ट हो गया या 20,000 का कोई रॉन्ग डेबिट या क्रेडिट हो गया, उसके बारे में हमें एक लेटर लिखना है, तो रिक्वेस्ट लेटर या तो कंप्लेन लेटर। तो अगर हम ऐसे कोई लेटर लिखते हैं, हमने पहले हमारा नाम लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया, हमारा सेविंग है, अकाउंट टाइप वो भी लिख दिया, डेट भी लिख दिया कि 24 को मैंने डाला है, ऐसा करके 24 के दिन मैं लेटर लिख रही हूँ। अब कितने अमाउंट का, दैट मस्ट बी क्लियर। तो वहाँ पे जो भी हम अमाउंट लिखते हैं बैंक करस्पॉन्डेंस के अंदर, यानी बैंक के लिए जो लेटर लिखते हैं उसके अंदर हम जो भी अमाउंट जो लिखते हैं उसको जो है फिगर्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। क्लियरली हमें उसको मेंशन करना है। जनरली हम क्या करते हैं, चेक लिखते हो तो अगर कभी देखा हो तो पता हो, जनरली हम उसको जो है लिखते हैं, जो फिगर्स है उसको नॉर्मल लिख देते हैं और वर्ड्स को ब्रैकेट में कर देते हैं। उसी तरीके से करस्पॉन्डेंस के अंदर भी, अभी तो मेजरली फिगर्स और वर्ड्स के लिए दोनों अलग स्लैब दे दिया है चेक के अंदर। प्रीवियसली आई वाज टॉकिंग अप, बट नाउ द चेक बुक्स आर अवेलेबल लाइक दैट ओनली फ्रॉम लास्ट 5 or 10 years, बट बिफोर दैट इट वाज बीन लाइक दैट। बट नाउ अगर हम बैंक करस्पॉन्डेंस में लेटर लिख रहे हैं तो उसके अंदर हमें नंबरिंग, फॉर एग्जांपल 1000 है तो 10000 लिख के स्लैश करके एक डैश कर देने का वो जो है फिगर माना जाएगा। तो ब्रैकेट में लिखेगा 1000 ओनली इन वर्ड्स, ONE 1 THOUSAND 1000 ONLY ओनली लिख के वापिस स्लैश एंड अगेन अ कट, तो जिससे उसको ब्रैकेट के अंदर, यानी अगर हमारे फिगर्स लिखने में, यानी हमारे फिगर्स लिखने में कोई प्रॉब्लम है, अगर सामने वाला फिगर्स नहीं रेक्टिफाई कर पा रहा है तो वर्ड्स देख के रेक्टिफाई कर ले। इसीलिए ये चीज़ कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीकों से लिखा जाता है ताकि एक मिस्टेक्स को तो अवॉइड किया जा सकता है। नॉर्मली बैंक की बात करते हैं तो दो टाइप का जो है करस्पॉन्डेंस देखा जाता है। तो कौन से टाइप का, लेट अस सी दैट रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट। फर्स्ट इज रिक्वेस्ट 1.2.1 request letter written to the bank. What are the letter? I am reading it out. Listen it out carefully. Letter written to open an account. Letter written to stop payment of the check. Letter written to get overdraft. Letter written to close an account. Letter written to open and demat account. Letter written to get educational loan. Letter written to get locker facility in the bank. Letter written to get facility of credit card, debit card, ATM. Letter written to inform the loss of credit card, debit card and ATM. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट लेटर का मतलब क्या? रिक्वेस्ट लेटर का मतलब हम बैंक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इस सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ये सर्विस की ज़रूरत है, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। वैसे क्या क्या चीज़ों के लिए हम रिक्वेस्ट करके बैंक को लेटर लिख सकते हैं? सबसे पहले बैंक में अकाउंट खुलवाना हो तो उसके लिए हमें एक रिक्वेस्ट करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, मेरा आधार कार्ड ये है, मेरा पैन कार्ड ये है, इसका नंबर ये है, मेरे को आपके बैंक में एक जो है अकाउंट खुलवाना है। उसके लिए नेसेसरी आपको जो KYC यानी नो योर कस्टमर्स की जो डिटेल्स चाहिए, रेशनिंग कार्ड, लाइट बिल, ये वो सारी अटैचमेंट देके हमें एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ता है। दैट इज द फर्स्ट लेटर। सेकेंड इज लेटर रिटर्न टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ द चेक। हमने किसी को चेक दे दिया, ठीक है, उससे चेक खो गई,
अब वो चेक हमको कॉल करके, आज मैंने किसी को चेक दिया, चेक खो गया, मुझे कॉल करके बोल रहा है कि आपका दिया हुआ चेक खो गया, तो अब वो कैसे एक्शन लेगा? बैंक तो हमारी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे बैंक को एक लेटर लिखना पड़ेगा, सो एंड सो चेक नंबर मैंने इनको दिया था, उनसे खो गया है। तो आप अगर उस चेक को आपके बैंक में कोई प्रोसीडिंग के लिए डाले तो उस पेमेंट को स्टॉप कर दीजिए। इस तरीके का एक रिक्वेस्ट लेटर पेमेंट को स्टॉप करने के लिए भी किया जाता है। ये तो लॉस्ट हुआ, अगर लॉस नहीं हुआ, आपने किसी को पेमेंट दे दिया बट उसने आपका काम नहीं किया, तो अभी आप पेमेंट स्टॉप करवा सकते हो। तो इस तरीके से पेमेंट को स्टॉप करने का, यानी चेक के थ्रू जो पेमेंट दिया गया उसको स्टॉप करवाने के लिए भी आप रिक्वेस्ट लेटर बैंक को कर सकते हो, बिकॉज यू नो दैट बैंक तुरंत के तुरंत ही कोई भी चेक क्लियर नहीं करता है। इट टेक्स मिनिमम 1 और 2 डेज और 3 डे, मोस्टली 3 डेज माना जाता है, बट आजकल जितना फैसिलिटीज ईजी होते जाते हैं, एक दिन में भी हो जाता है, इसलिए एक दिन के अंदर अगर आप इन्फॉर्म करते हो तो वो रेक्टिफाई उस एरर को कर लेता है। लेटर रिटर्न टू गेट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, यू नो दैट कि आपके बैंक करंट अकाउंट में चल रहा है, आपका अकाउंट टाइप करंट है, आप बिजनेसमैन, और आपके खाते में अगर पैसे ना भी हो तो आपको एक लिमिट दिया जाए ताकि आपके ट्रांजेक्शन कहीं अटके नहीं, दैट इज कंसिडर्ड एज ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट के लिए भी अपील करते हुए एक रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हो कि मैं ये बिजनेसमैन हूँ, मेरा ये बिजनेस चलता है, मैं हर महीने आपके बैंक में इतना ट्रांजेक्शन करता हूँ, मुझे एक 50,000 की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हो? वैसा एक जो है ओवरड्राफ्ट की हम लेटर का एक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेटर रिटर्न टू क्लोज एन अकाउंट। ऑलरेडी यू नो दैट मोस्टली वी आर नॉट एबल टू हैंडल सो मेनी अकाउंट्स, ठीक है। आजकल तो एक अकाउंट तो मोस्टली सबके पास होता ही है, बट अगर इफ़ यू आर वर्किंग और जॉब डूइंग पर्सन तो तुम्हारा 5-6 जगह पे होगा, जितना जॉब बदलोगे उतना आपका अकाउंट बनता जाएगा। तो आप हर एक अकाउंट को तो ओपन नहीं रखोगे ना, हर एक अकाउंट का चार्जेस भी आप फेस आउट नहीं करोगे। सो व्हाट यू कैन डू, you can close that account. For closing also you have to request that I don't want to continue in this bank because I'm having another bank account. I don't we cannot say ना we don't like your service and that, अगर ऐसा भी कोई बैरियर है या कुछ प्रॉब्लम आया, so we can say that कि मुझे अब इस अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करना है, मेरा ऑलरेडी वो अकाउंट है और अब उसमें चार्जेस कम है, तो मैं वो लेना पसंद कर रहा हूँ, तो मैं उसमें अकाउंट रखूंगा। दिस आई वांट टू क्लोज इट। आइदर इफ समवन इज डिमाइज्ड, कोई मर गया है उसकी अकाउंट बंद करना है, या तुम यूज ही नहीं करो, अकाउंट ऐसे ही पड़ रहा है, चार्जेस ही हो रहे तो उसको भी बंद करना, तो उसके लिए भी एक रिक्वेस्ट लेटर आप लिख सकते हो। नाउ लेटर रिटर्न टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। व्हाट इज डीमैट? शेयर होल्डर्स, यस, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, डीमैट अकाउंट, जो शेयर का जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, ठीक है, एसईबीआई के अंदर अभी आजकल सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक होने लगा, वैसे ही डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट हो गया, फिजिकल शेयर्स पॉसिबल नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉनिकल शेयर्स आ गए, तो उसके लिए हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट कौन हमें ओपन करके देता है? दैट इज बीन ओपन अप बाय द बैंक। सो हमें उनको एक रिक्वेस्ट लेटर, अगेन वी हैव टू राइट दैट आई एम अ पर्सन, आई एम डीलिंग विद द शेयर्स, आई एम बाइंग एंड सेलिंग इट, समटाइम्स आई एम इन्वेस्टिंग ऑन शेयर्स एट ऑल दैट पोर्शन, सो आई वांट एन डीमैट अकाउंट, ऐसा करके हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ रिक्वेस्ट लेटर। नाउ लेटर रिटर्न टू गेट एजुकेशनल लोन। अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, यहाँ तो एजुकेशनल लोन दिया है, बट अगर आपको हाउस लोन चाहिए कि कोई भी लोन चाहिए तो आपको एक लोन के लिए रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ता है कि मैं आपके बैंक में इतना अकाउंट होल्डर हूँ, ठीक है, इतने साल से कर रहा हूँ, मेरा इतना ट्रांजेक्शन है, मुझे अचानक से लोन की ज़रूरत है और इस पर्पज़ के लिए चाहिए। वैसा एक आप जो है रिक्वेस्ट एजुकेशनल लोन के लिए कर सकते हो, हाउसिंग लोन के लिए कर सकते हो, पर्सनल लोन के लिए कर सकते हो, वैसे बहुत सारे लोन्स के लिए आप जो है रिक्वेस्ट लेटर कर सकते हो। नाउ लेटर रिटर्न टू गेट लॉकर फैसिलिटी इन द बैंक। लॉकर फैसिलिटी, यू मस्ट बी नोइंग द फैसिलिटी ऑफ लॉकर। लॉकर के बारे में तो पता होगा, मोस्टली लोग बोलते होंगे गहने कहाँ है? लॉकर में है। येस, ऑर्नामेंट्स आर केप्ट इन द लॉकर, डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट इन द लॉकर। इन मैनी मूवीज ऑल्सो यू मस्ट हैव बीन सीन। बैंक क्या करता है? बड़े बड़े बैंक लॉकर की फैसिलिटी देता है, जहां जो अच्छे घर पे, जहां हमें लगता है कि हमारे घर पे सेफ्टीली हमारे डॉक्यूमेंट्स या गहने नहीं रह सकते, तो हम वहां पे उसको जाके रख सकते हैं। उसके चार्जेस बैंक करता है, तो वो लॉकर ऐसे ही हर किसी को तो नहीं देता है, जिसे ज़रूरत हो उसे ही देता है, तो उसके लिए भी हमें एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ता है कि मैं आपके बैंक में इतने साल से कस्टमर हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें रखने के लिए लॉकर चाहिए, तो मुझे एक लॉकर हो तो अवेल करवाओ। तो लॉकर की फैसिलिटी का भी चार्ज वगैरह जानने के लिए हम एक रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हैं और उसकी भी हम एक रिक्वेस्ट लेटर करके एक करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। लेटर रिटर्न टू गेट द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड। नॉर्मली अभी तुम लोग इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं होंगे। आई नो दैट तुम्हारे फादर या मदर के पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑब्वियसली होगा। आजकल ये सिस्टम हो गया, आप जब बैंक अकाउंट खुलवाते हो तभी आपको पूछ लेते हैं एक ही बार में, एक ही फॉर्म में वो लिखवा देते डेबिट कार्ड चाहिए, ओके टिकट, ऐसा करके करवा देते। फर्स्ट इन द इनिशियल पेज इट वॉज नॉट लाइक दैट।
अगर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपके बैंक अकाउंट खुलने के बाद जब आपको ज़रूरत हो, फर्स्ट टाइम इट वाज नॉट गिविंग विद द बैंक, ओके, बैंक अपने आप ही उसको नहीं देता था, बैंक अकाउंट के साथ वो नहीं दिया जाता था. आफ्टरवर्ड्स ओनली इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल. नाउ दे everyone is taking, because you know that now that e-cash is going on, electronic cash is going on, that's why all the people are having that. Rather than that, पहले ऐसा होता था, even I have given before 6 years एक लेटर लिख के देना पड़ता है, मेरा नाम ये, मेरा अकाउंट नंबर ये, और मेरे अकाउंट इतने साल से मुझे एटीएम की ज़रूरत है और मुझे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अवेल करवा दिया जाए. इस तरीके से एक रिक्वेस्ट लेटर लेना पड़ता है और उसके बाद बैंक उसको सैंक्शन करके एटीएम आपके घर तक पहुंचाता था. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. सिस्टम हैज़ बीन लिटिल चेंज्ड, और वी कैन से दैट अपडेटेड, बट स्टिल these letters can be written up if you need, and you can have the correspondence of the ATM and debit card in this manner. Letter written to inform the loss of debit card, credit card and ATM. Yes, अगर आपके पास ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है और अगर आप कहीं गए और खो गया है तो आपको उसको बैंक को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा. तो बैंक जो है वो एक लीगल एंटिटी है, तो आप डायरेक्ट वहाँ जाओ, बोलो मेरा एटीएम कार्ड खो गया, तो उसको याद तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि दे आर हैविंग नंबर्स ऑफ कस्टमर. तो आपको रिटर्न में वापस एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ता है कि मेरा जो एटीएम नंबर है वो है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, मैंने इस डेट को जो है एटीएम लॉस्ट कर दिया, यहाँ था, इस तरीके से लॉस्ट हो गया, तो प्लीज़ अगर उस एटीएम कार्ड से अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको स्टॉप कर दीजिए. इस तरीके से हमें वो जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड का लॉस हुआ है उसके बारे में हमें बताना पड़ता है. नेक्स्ट इट इज कंप्लेन लेटर. ठीक है, सो व्हाट इज कंप्लेंट लेटर? सो कंप्लेंट लेटर मतलब ऑब्वियसली हमें कंप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है ना. इवन इन द बैंक ऑल्सो वी कैन कंप्लेन फॉर सर्टेन पोर्शन, बट इट मस्ट बी इन अ वेरी लीगल मैनर. सो फर्स्ट इज लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक बाय बैंक. काफ़ी बार ये देखा गया है और दिस इज द ट्रू वन. काफ़ी बार आपके बैंक में पैसे होने के बावजूद बैंक क्या करता है, चेक को डिसऑनर कर देता है. डिसऑनर कर देना मतलब बाउंस चले जाना है ना, बाउंस जाता है ना कि अकाउंट में पैसे नहीं है इसलिए वापिस आ गया, रिटर्न टू रिटर्न द चेक. तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो. यू कैन राइट अ कंप्लेंट कि मेरे अकाउंट में लास्ट 3 महीने से 10,000 पड़ा है, मैंने 2,000 का चेक दिया है, फिर भी वो डिसऑनर हुआ, क्यों? इस तरीके से आप एक कंप्लेन या एग्रेसिव मोड पे क्वेश्चनिंग कर सकते हो बैंक के ऊपर. बट स्टिल रिमेंबर, दिस मस्ट बी, द वर्ड्स मस्ट बी एग्रेसिव, यू शुड बी नॉट, द लेटर्स मस्ट बी इन दैट पोर्शन इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर. यू हैव टू राइट द पोर्शन. वो कैसे लिखते हैं, दैट एग्जाम्पल्स आर गिवन अप इन द फर्दर चैप्टर. फर्दर चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है, तो हम डिटेल में एक एक फॉर्मेट को ईजिली और अच्छी तरीके से देखेंगे. ठीक है, सेकेंड लेटर इज लेटर ड्रॉइंग अटेंशन टूवर्ड्स एन एरर इन द बैंक स्टेटमेंट पासबुक. अब ये हुआ कि अब हर महीने 2,000 तो सबमिट करवाते हो, 1,000 उठाते हो, फिर 500 डालते हो, फिर 200 उठाते हो, ऐसे आपको पता है आपका ट्रांजैक्शन इतना इतना हुआ, बट फिर भी आपने नोट किया कि आपका जो बैंक का स्टेटमेंट निकला है, BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ले लो या पासबुक ले लो, उसके अंदर कोई एरर हो गया, यानी डेबिट क्रेडिट में कुछ प्रॉब्लम है, आपका जो बैलेंस है आपको जो लगता है इतना होना चाहिए उतना है नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कट गया या कुछ एक्स्ट्रा डेबिट हो गया, आपने कोई पेमेंट किया ही नहीं, वो पेमेंट कट हो गया. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आप अटेंशन करवा सकते हो बैंक को. कैसे? कि मैंने इस डेट को कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है, बट मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, ये किससे, कहाँ, कौन से जगह से हुआ है, मुझे ये जानना है, क्योंकि मेरा ये है ही नहीं, ये एरर आपके यहाँ से हुआ है. इस तरीके से आप एक जो है कंप्लेन लेटर उनको बता सकते हो. थर्ड पॉइंट इज लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रूड बिहेवियर ऑफ अ बैंक एम्प्लॉई. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम ये चीज़ नहीं करते हैं, बिकॉज वी शाउट ऑन दैम एग्रेसिवली, वी शाउट ऑन दैम, दे शाउट ऑन दैम, वी विल फिनिश इट अप एंड अगेन वी विल कम, बट वी नेवर राइट. बट टू बी हॉनेस्ट, रेदर देन शाउटिंग आप एक कंप्लेन लेटर लिख सकते हो. अगर आप कोई बैंक में गए हो, कोई एम्प्लॉय आपके साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा है, ही इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विथ यू आफ्टर बीइंग पोलाइट ऑल्सो, अगर आप शांत हो, आप अच्छी तरीके से उससे बात कर रहे हो, फिर भी वो रूडली आपसे बिहेव कर रहा है, वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप उस बैंक के मैनेजर को एक लेटर लिख सकते हो कि आपका ये बैंक एम्प्लॉय ये नाम का, मैं इस डेट को आया था, इतने बजे आया था, मैंने उससे पोलाइटली ऐसे सब बोला, बट उसने ये मेरा काम नहीं किया. इस तरीके से आप एक लेटर लिख सकते हो, एंड दिस इज एन रिटन एविडेंस दैट रॉन्ग थिंग वॉज डन बाय दैट एम्प्लॉय. बाकी आप चिल्ला के आ जाओ तो उधर कोई फायदा नहीं होता. दैट इज द रीजन मोस्ट प्रोबेबली आई ऑलवेज से दैट ऑलवेज डू द पोर्शंस इन अ वेरी करेक्टिव मैनर. तो कहीं चिल्लाने से अच्छा अगर आप रिटर्न में कंप्लेन देते हो, दैट विल बी लिटल बेटर वन. ठीक है, सो हियर फॉर बैंक वी आर टॉकिंग अप, एवरी प्लेस रिटर्न कंप्लेन इज नॉट नीडेड एंड नॉट must be also, to be honest. Why? Because हर जगह written complaint it is an evidence also, as I said, and rather than creates an bad impression, most probably in bank if you are seeing it is an legal entity.
ओके, फॉर दैट पर्पज इफ यू आर डूइंग सम प्रोफेशनल थिंग, अगर हम मम्मी पापा से झगड़ते हैं, उनसे हमें कोई कंप्लेन है तो हम उनको रिटर्न में कंप्लेन नहीं देंगे ना, भैया ने मुझे ऐसा मारा, ऐसा बोला. That is not needed. In the same manner here for bank, complaining third letter is, as I said, ये ऑप्शन होने के बाद भी हम ये नहीं करते, हम यही सोचते हैं भाई वी शुड डू दैट, बट ये भी एक ऑप्शन कंप्लेंट के रूप में है. सो इफ यू आर सीइंग द रिक्वेस्ट लेटर्स आर ऑफ 9 टाइप्स एंड द कंप्लेंट लेटर इज ऑफ 3 टाइप. ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का टॉपिक रखते हैं. अभी एक फॉर्मेट देख लेने का इच्छा था, बट आई होप दैट आप बोर हो गए होंगे, तो आज का टॉपिक यहाँ तक रखते हैं. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. Students, I hope that you all have understood the portion that we have seen up in the today's video. I'm not doing the summarization for the portion that we have seen it because I know this was a very easy topic for you all. Already we have seen these topics in the 11th standard and even in Eco and BA. In most of the portion we are seeing the same portions in the टेक्स्ट बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बीए. तो इकोनॉमिक और बीए दोनों के टेक्स्ट बुक में यही टॉपिक्स कहीं ना कहीं रेलेवेंट मीन्स सिमिलरली कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है. सो वी आर नोइंग दिस पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर, बट हियर द फॉर्मेट ऑफ द लेटर्स एंड फॉर विच पर्पस दिस ऑल थिंग्स आर यूज्ड एंड व्हाट इज द प्रॉपर मैनर that is being explained to you. So I hope that you all have understood the today's video in a very well manner. At last but not least, the same dialogues for you all. I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.